आज इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और इस बिल में बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में विवरण नहीं किया गया है। और कभी भी कानून अच्छा या बुरा सिर्फ कानून पढ़ के हम नहीं कह सकते, लेकिन कानून का उपयोग या दुरुपयोग करने वाले जो सरकार है उसका हिस्टोरिक रिकॉर्ड, उसका आचरण देख के हम कह सकते हैं कि ये कानून भविष्य में हमारे सहयोग में आएगा या इस कानून के द्वारा विपक्ष के आवाज को कुचलने की कोशिश होगी। आज ये कानून में बहुत से खामियां हैं और बहुत से प्रश्न हम उठा सकते हैं। सिद्धांतिक रूप से हम प्रश्न उठा सकते हैं, संवैधानिक रूप से हम प्रश्न उठा सकते हैं, सुशासन के रूप आधार पर हम प्रश्न उठा सकते हैं। सिद्धांत के रूप में सर, लोकतंत्र का मंदिर चार स्तंभ पर खड़ा होता है: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड मीडिया। And we want all four pillars to be strengthened. But only if the executive strength is strengthened, without proportionate strengthening of legislation, judiciary and media, then the temple of democracy is vulnerable. And therefore, what is this bill is a classic case where the executive is giving itself more power, but the same proportionate power is not given to legislative. And that is why when checks and balances are not there, that is when a democratic country or a democratic state can be an autocratic state. And that is something that we have to be careful of, because with the advent of technology, with advent of new tools, a government has much more powers than what it did in 1920. With the hordes of surveillance technologies, including technologies like Pegasus, this government has powers that no other government in the past has seen. And therefore, the question of checks and balances and legislative scrutiny and parliamentary scrutiny become that much more important. And that is why I make my party's demand right at the onset that send this bill to the standing committee for it to be evaluated at a comprehensive level. This question, there is also the constitutional questions which has been outlined by my senior member of parliament, Manish Tiwari, on Article 14, Article 21, Article 16 and Article 23. Also, sir, on the Puttaswamy judgment outlined the three basic principles of proportionality and necessity. Please tell us, how has that three test been implemented in the bill of proportionality, of necessity, when you're talking about storage of records? One second, Gaurav. 1 minute. Silence. अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, सिद्धांतिक रूप से प्रश्न है, संवैधानिक रूप से प्रश्न है और सुशासन के रूप से भी प्रश्न है, जिसका उल्लेख हमारे वरिष्ठ सांसदों ने किया है कि यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होगा, चाहे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, उसका विवरण नहीं है, और तीसरा, आज के तारीख पे डीएनए लॉ भी मिसिंग है। तो जब सराउंडिंग इकोसिस्टम नहीं है तो ऐसे बहुत से प्रश्न उठ सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस बिल को लेके जल्दबाजी मत करिए। हम सब चाहते हैं कि हमारी पुलिस कर्मचारी उनके हाथ में और ताकत दे। हम सब चाहते हैं कि पुलिस कर्मचारी आज बहुत कठिन परिस्थिति में काम करते हैं, उनको मदद की जरूरत है, लेकिन उनके इतने समस्याएं हैं, आज कानूनी व्यवस्था में इतने समस्या हैं, लेकिन उस समस्याओं का समाधान करने के लिए आप बिल नहीं लेके आए हैं। आज देयर इज अ हाई लेवल ऑफ एक्विटल्स, the large volume of under trials not facing their trials and they are suffering in jails. There is a lack of fatigue amongst police officers. They are underpaid, they are overworked, they don't have the necessary tools. So there's so much that you can bring in order to strengthen the arms of law enforcement agencies. But it is unfortunate that this government always brings bills that can only be politicized and be used to harass its political opponents. We've talked about the UAPA bill. Please, in your reply today, give how many hardcore terrorists have been caught under UAPA, and how many students and petty activists have been caught. Please tell us, under Sedition Act, how many hardcore sedition acts have you arrested? Unfortunately, sir,
They are ministers who talk about shooting people. गोली मारने वाले, स्लोगन देने वाले लोग हैं, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। जेएनयू के उल्लेख किया गया है, विभिन्न और उल्लेख किए गए हैं। सर, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आज मूल प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? हम कानून को लेकर, हम मूल प्रश्न नहीं है। मूल प्रश्न ये है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता। और बहुत अफसोस की बात है कि अगर 2014 से इस सरकार का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो दुरुपयोग होने का ज्यादा और प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा और वहां पे चांसेस। और इसीलिए इस बिल को लेकर हम अपना चिंता प्रकट कर रहे हैं। 87 कमीशन की बात की गई है। सर, 87 लॉ कमीशन के रिपोर्ट में भी when they talk about categories of persons whose measurements can be taken, they talk about convicts of offences punishable with rigorous imprisonment for a term of 1 year, or they talk about convicted under specified offences like Section 19 of the Dangerous Drugs Act. This is the recommendation of the 87th Law Commission. But आपके यहाँ पे आपने सारे दायरे हटा दिए। कोई भी कॉन्विक्ट हो सकता है, किसी भी ऑफेंस के लिए अरेस्ट हो सकता है, या प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर भी उसको इस कानून के अंदर लाया गया है। तो इसलिए जो बार बार जो ये लांछन आप पे आ रहा है कि क्या ये सरकार क्या पुलिस स्टेट होना चाहती है, सर्वेलेंस स्टेट होना चाहती है, जो हमारे नागरिकों की जो अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार जो उनके संविधान से मिलती है, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो अधिकार हमारे देश के नागरिकों को दिया है, क्या उन अधिकार को आप हनन करना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं? अगर दूसरा, there was a measurement that the magistrate could order in the old bill, in the 1920 bill, the magistrate said could order that no order shall be made under this section unless the person has at some time been arrested in connection with such investigation or proceeding. So there has to be a prior arrest, which was there in the 1920 law, and also it was reiterated in the 87th Law Commission report. But now in your bill, you give the magistrate far more powers than what has been recommended under the 87 Law Commission. अब आप बोल रहे हैं, the magistrate can order collection of measurements of any person whether or not arrested. तो इसीलिए आप हमें बताइए कि 87 लॉ कमीशन का आप जरूर जिक्र करिए, लेकिन उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए उससे आप और बाहर क्यों गए हैं? एग्जीक्यूटिव ओवररीच क्यों हो रहा है? तीसरी बात आई है ये सेंट्रलाइजेशन, ये पूरा डाटा आप चाहते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में ये पूरा डाटा रिकॉर्ड होना चाहिए। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जब स्टेट सब्जेक्ट होता है और पूरा ये डाटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में आता है, तो इसको लेके मुझे एक पुरानी बात याद आती है प्रधानमंत्री मोदी जी की, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस समय की यूपीए सरकार ने नेशनल काउंटर टेररिज्म काउंसिल का उल्लेख किया था। और उस समय मुख्यमंत्री मोदी जी, जो आज के तारीख में प्रधानमंत्री हैं, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने नेशनल काउंटर टेररिज्म काउंसिल का विरोध किया था कि यह संघीय ढांचा पर एक आक्रमण है। तो आज जो आप पूरा ये जो डाटा है स्टेट का, अब आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स में लाना है, तो क्या मुख्यमंत्री मोदी जी ने उस समय जो कहा था, क्या उसके बातें के अनुकूल आप नहीं है? तो ये अब मैं जानना चाहता हूं। आप बात करते हैं विभिन्न देशों की। हमारे भाजपा के प्रथम प्रवक्ता ने बात की थी कि यूएस में भी ऐसे लॉ है, यूके में भी ऐसे लॉ है, दूसरे देश में भी ऐसे लॉ है। माना मैंने माना कि यूएस और यूके में ऐसे कुछ लॉज हैं जिसमें ये सारा डाटा ले सकते हैं, पर उनका इकोसिस्टम देखिए। यूएस में जब एक पुलिस कर्मचारी अगर अपने ड्यूटीज का डिरेक्शन करता है, जॉर्ज फ्लॉयड के केस में जब एक पुलिस कर्मचारी के एक्शन से जब एक आदमी मर गया तो उसका ट्रायल जज कोर्ट में हुआ और उसको सेंटेंस मिली। यहां पे क्या होता है? यहां पे अरुणाचल प्रदेश के 2 बच्चों को आर्मी गोली मार देता है, कोई नहीं। मोन डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में 14 लोग मारे जाते हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी है लेकिन कुछ नहीं। तो इसीलिए आप यूएस और यूके की बात करते हैं, लेकिन वहां का इकोसिस्टम, वहां के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, वहां के ऑफिसर्स पे सुपरविजन यहां पे कहां है? आफ्पा के अंदर आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में 2 शूटिंग हुआ है, कोई हमारे पता नहीं। मोन डिस्ट्रिक्ट के शूटिंग में कुछ नहीं पता। कितने सारे कस्टोडियल डेथ हुए हैं, आपने कितने सारे ऑफिसर्स को पकड़ा। यूके में पुलिस ऑफिसर्स जो अपने हर डिसीजन राइटिंग में रखते हैं। यूएस में पुलिस ऑफिसर्स अपने आर्मर में बॉडी कैमरा रखते हैं।
ताकि हमेशा लीगल वहां पे चैलेंज हो सकता है। ऐसे एक आप तकनीक दीजिए, ऐसा एक इकोसिस्टम बनाइए हमारे कर्मचारियों को सशक्त करने के लिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको अस्त्र दीजिए, उनको उनका जो पगार है वो बढ़ाइए, और तब जाके आप कंपेयर करिए यूएस और यूके के साथ। तो इसीलिए मैं बार बार बात करता हूं, द होम मिनिस्टर हैज गिवन अस नो assurance that this bill will not be abused, and that is a central question. Therefore, on basis of constitutional propriety, on the basis of propriety of Indian principles, on the basis of propriety of governance, I demand that this bill should be sent to the standing committee. Thank you very much.